So 2 days back, I uploaded a video on my YouTube channel in which I have shared my watch list, in which I have shared 3 to 4 stock which I was going to trade next week. And out of those four stocks, one stock gave around 9 to 10% momentum in a single day. So if you will look at the video now, like I'm going to show you that video. In that video, I was feeling like I said that I was confident enough that in this stock we can expect a momentum in upcoming few days. So what was the reason why I was feeling very confident about that stock? What was the thing which I looked at the chart, so I was feeling that no, there is a chance that there might be a good momentum possible in this stock. So if you are someone who tries to catch such momentums, who try to catch 10 to 15, 20% momentums in like upcoming 3 to 5 days, so this video is going to be super important for you, because in this video I'm going to share my complete mindset. What are the things which I look at the chart? What are the things from my perspective, what are the things which I look at the chart, so that I decide that in this stock there might be a possibility कि इसमें एक momentum आ सकता है. So let's start the video, and in this video I'm going to share you 3 reasons. I'm going to share 3 analysis in depth. What were the things which I looked at that time. I will share that. I'm going to share the first thing. I'm going to share the second thing. I'll be sharing you the all the 3 things, all the 3 analysis which I have done to that stock. So let's start the video. And first of all, I'll take you to my YouTube, right? So you will get an idea. I'll show you just a small clip of that. कि मेरे भी वॉच लिस्ट पे. सो लेट्स लुक एट वन बाय वन. लेट्स लुक एट दी जीरा सीखो लाइफ केयर लिमिटेड. वाई द स्टॉक इज ऑन माई वॉच लिस्ट. सबसे पहले तो आप ये देखो, मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में है. लुक एट दिस. आई शो. So this was the stock Gina Seco Lifecare Limited. This was the stock which was in my watch list, one of the stock which was on my watch list. And in this video also I have shared my analysis. Basically it was in short, but today okay, let's wait. I'll show you the trading view first and I'll show you the momentum. So this was the stock Gina Seco Lifecare Limited, and if you will see in the video, this stock was trading at 1206. Now the stock is trading somewhere around 798. But just after I made a video, this stock from this level, it was trading at 1206, and from this level, this stock made a high of somewhere 10%, around 10% return in a single day. That's quite good, I believe. Right. So this was the stock. This is the momentum which I got. So why I decided, the question comes here is why I decided that I'm going to trade this stock. Why I was confident by looking what on the chart. I was confident that this stock, there is a possibility कि इस stock में momentum आ सकता है. So let's go one by one. I'll share with you. So let's have the first reason. What was the reason, like why I decided I'm going to trade this stock? So the first reason is trend. I'll show you. Just give me a second. Look at the chart of this stock. Completely in uptrend, like it is making higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. The trend is up. So like first criteria is met, that we have to look at the trend. Now the crisp here is, if you will look at the mid cap index, look at the mid cap index on daily time frame, you will see that the mid cap index was trading somewhere around 60,971, and now it is trading at 55,561. That is somewhere 7 to 8% down from its high, 8.90, approximately 9% down. Same case with small cap index. If you are going to look at the small cap index, then you will see that it made a high of somewhere 19,600. Now it is trading 18,100, 7.65, approximately 8% down. When small cap and mid cap, these two indexes were down, all the stocks were crashing, all the stocks were falling, right? This was the stock Gina Seco. This was the stock that gave a good momentum in that scenario. Basically it is also known as market strength. So in short, I'll give you an idea what is known as market strength. In my like previous videos I talk about this term market strength. Market strength में ट्रेड करो जब भी मार्केट क्रैश हो रहा हो. मैं मार्केट स्ट्रेंथ लाइक वो स्टॉक्स चूज करता हूँ जब भी मार्केट रिवर्स होती है, तो वो स्टॉक चूज करता हूँ जो मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है. सो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डू इट मीन कि मार्केट स्ट्रेंथ होता क्या है? मार्केट स्ट्रेंथ इज नथिंग बट, मार्केट स्ट्रेंथ क्या होता है ना, जब ओवरऑल मार्केट हमारे अगेंस्ट में, जब ओवरऑल पूरी मार्केट रिवर्स हो रही है, सो कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि ना ही उस लेवल से नीचे गिर रहे होंगे, ना ही वो ऊपर जा रहे होंगे. बेसिकली दो स्टॉक्स वेर एट दैट सेम लेवल.
तो आप जब ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है दैट यार ओवरऑल पूरी मार्केट रिवर्स हो रही है, पूरी इंडेक्स क्रैश कर रहा है, सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं, व्हाई दिस स्टॉक इज नॉट फॉलिंग. सो द रीजन कुड बी, देयर कुड बी अ टू रीजन. नंबर वन रीजन कुड बी लाइक कोई बड़े प्लेयर्स हैं उसमें, बायर्स हैं जो उसे होल्ड कर रहा हो, या तो कोई सेलर्स उस स्टॉक को सेल करने में लाइक इंटरेस्टेड नहीं है. सो डोंट यू थिंक जब मार्केट ओवरऑल अगर स्टेबल होता है या फिर जब एक मार्केट ओवरऑल जब रिवर्स थोड़ा सा पुल बैक लेता है, सो दीज वर द स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है इन अपकमिंग डेज. सो दिस वॉज माई फर्स्ट लॉजिक कि ओवरऑल मार्केट पूरा रिवर्स है बट दिस इज द स्टॉक जो कि गिरा नहीं है. तो अगर मार्केट एक पुल बैक लेता है सो देर आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम इन दैट स्टॉक. सो दिस वॉज माई फर्स्ट रीज़न जिसके कारण मैंने सेलेक्ट किया था. एंड आई शो यू द सेकेंड रीज़न. What was the second reason for this stock? So the second reason was, I'll show you, the second reason was about the volumes. Look at this. अगर आप देखोगे सो ऑन 7th June 2024 at that point of time the average volumes in this stock was going somewhere like 68k 68,000 volumes per day. In that particular day the volume rises like 783k, it means 7,83,000, that is more than 10 times volume. So whenever this kind of volume comes to any stock which shows कि कोई एक बड़े players हैं market में जो कि stocks में entry जिन्होंने positions बनाया है. और and I realized this by analyzing lot of stock, by looking at the lot of charts. I understood कि जब भी ऐसे वॉल्यूम्स आते हैं ना तो उसके कुछ दिन तक मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, साइडवेज जाता है, उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम आती है इसमें. तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ रखी थी. एंड लुक एट, अगर आप रिसेंट डेज में भी इसकी अगर वॉल्यूम्स देखोगे, वॉल्यूम एनालिसिस जिसको मैं बोलता हूँ, अपने लाइक मोस्ट ऑफ द वीडियोस में करता हूँ वॉल्यूम एनालिसिस क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखो, मार्केट वाज गोइंग अप, वॉल्यूम वाज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली. मार्केट जब भी हमारे अगेंस्ट में जा रहा था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाए, बट जब भी मार्केट नीचे आ रहा था वॉल्यूम्स कंप्लीटली ड्राई अप हो जा रहे थे. लुक एट दिस, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग. जब भी प्राइस नीचे आ रहा है वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली. व्हाट डू इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि जब भी हमारे अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है तो सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल. अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते उसको सेल करने के लिए उस प्राइस पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वॉल्यूम्स बड़े होते हैं. ऑर्डर अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर पंच होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा आएंगे. बट यहाँ पे लाइक द वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे, जब भी हमारे अगेंस्ट में प्राइस आ रहा है तो वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग, बट जब भी हमारे फेवर में प्राइस मूव हो रहा है तो वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, विच शोज कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है स्टॉक को लेके, दैट दे आर बाइंग इवन एट द हायर प्राइसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर जब स्टॉक 1400 पे था तब भी बायर्स ट्रेड कर रहे थे. जब स्टॉक 1450 पे गया वहाँ पे भी बायर्स बाय कर रहे थे, जो बताता है दैट बायर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस स्टॉक. एंड एट द सेम टाइम sellers are not interested, whenever the price is reversing sellers are not interested in selling that stock. So this was my second reason कि यार कहीं ना कहीं बायर्स इस प्राइस को होल्ड कर रहा है, इस स्टॉक को होल्ड कर रहा है. एंड आई विल शो यू द थर्ड रीजन, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था. सो लुक एट दिस. फर्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल पे जाता है, इट रिवर्स, मतलब वहाँ से एक बार फॉल होता है, यहाँ पे सेलर्स ट्राई करते हैं नीचे गिराने का, एक बार नीचे आया, फिर से बायर्स ट्राइड अगेन. सेलर्स लाइक यहाँ से स्ट्रॉन्ग थे सेलर्स, उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया, प्राइस नीचे आता है, अगेन बायर्स होल्ड द प्राइस, फिर से प्राइस उस लेवल पे जाता है. इट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, इसके ऊपर भी ट्रेड करने लगा बट इट कुड नॉट एबल टू सस्टेन दैट, और ये फिर से नीचे आ जाता है. नाउ आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक बार ऊपर गया, दो बार ऊपर गया, तीन बार ऊपर गया, काफ़ी बार, मतलब उस वो जो रेसिस्टेंस लेवल था वो तो वीक हो गया, क्योंकि जब बार बार वहाँ से सेलर्स, आप ऑब्वियसली फील करो कि आप किसी लेवल से बार बार सेल कर रहे हो, फिर से प्राइस उसी लेवल पे आ रहा है, फिर से आपने सेल किया, प्रॉफिट दिख रहा है, फिर से जीरो, आप नेट टू नेट पे आ गए, फिर से आपने सेल किया, फिर प्रॉफिट आपको दिखा, फिर से नेट टू नेट पे आ गए. तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना दैट आप गिव अप करोगे, यार जाओ आप लाइक आप उसको, मैं वहाँ से सेल करना बेसिकली बंद कर दूंगा. दिस इज़ वॉट आई मीन. सो सेम केस यहाँ पे होता है. उसके बाद कंप्लीटली मार्केट 3 to 4 डेज साइडवेज आता है एंड इट कुड एबल टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस लेवल, इसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज करता है. एंड उसके बाद आप देखो कंप्लीटली आई कुड नॉट एबल टू कैच दिस मोमेंटम, जो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले वाली जो मोमेंटम होती है मैं उसको कैच करूँ. आई कुड नॉट एबल टू कैच दैट, बट उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5 6 अप्रॉक्सीमेटली फॉर कंप्लीट 5 डेज मार्केट साइडवेज जाता है above this level. Now this resistance level was acting as support. देखो मार्केट इज ऑल अबाउट बेसिक, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये तो बेसिक्स हैं, ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये ओवरऑल वर्क
वर्क करता ही है। देखो यहाँ पे सब जो रेसिस्टेंस था नाउ दैट इज वर्किंग एज सपोर्ट, वहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहे हैं प्राइस को। सो व्हेन दिस प्राइस वाज कंसोलिडेटिंग एट दिस जोन, सो आई वाज लुकिंग कि अब यहाँ से अगर मुझे एंट्री मिलता है सो आई एम गोइंग टू ट्रेड। अगर मुझे अच्छी वॉल्यूम्स के साथ एंट्री मिलता है सो आई एम गोइंग टू ट्रेड। एंड बेसिकली लाइक इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, जब भी ऐसे सिनेरियो बनता है ना, जब भी मार्केट साइडवेज आता है, सो आई जनरली ट्राई कि अगर वहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल मुझे अगर मिल जाएगा सो आई विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। जो मेरा फेक एंड मूव सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे मुझे इनसाइड कैंडल मिल जाएगा तो मैं उस पर एंट्री बना सकता हूँ। मेरी जो एग्जिट होगी दैट वुड बी बिलो दैट इनसाइड कैंडल। तो दैट वॉज कम्प्लीटली माई प्लान। यहाँ पे जब इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ तो आई वॉज प्लानिंग कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आई विल मेक अ पोजिशन। जब इसके ऊपर गया सो ऑब्वियसली मेरी बाइंग ट्रिगर होती है इसमें। नेक्स्ट डे लुक एट, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है एंड देन द प्राइस शूट्स अप एंड 10% मोमेंटम, द रेस्ट इज हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ यू। 10% मोमेंटम इन अ सिंगल डे। सो दिस वॉज द थिंग जो कंप्लीट एनालिसिस था। मैंने आपको रीजंस बताया, मैंने आपको अपनी साइकोलॉजी बताई, कैसे मैं लाइक स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, व्हाट आर द थिंग्स विच आई लुक एट, व्हाट आर द थिंग्स विच आई डोंट लुक एट। सो बेसिकली दिस आर द थिंग्स विच आई लुक एट। मार्केट स्ट्रक्चर भी मैं देखता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर इज समथिंग बट जो मैंने आपको बताया सपोर्ट रेसिस्टेंस, मतलब एक अप ट्रेंड में आके कंसोलिडेशन फेज में रहना चाहिए, एक्यूमुलेशन होना चाहिए, मतलब बायर्स एंड सेलर्स वहाँ पे फाइट करना चाहिए। सो दिस वाज समथिंग विच आई वाज लुकिंग एट। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन फॉर्म हुआ, एक्यूमुलेशन आप कंसोलिडेशन सेम बोलो। सो जब भी इसका ब्रेकआउट होता है एक मोमेंटम आता है। सो दिस वॉज द स्टॉक, दिस वॉज माई कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव था। एक अच्छी वीडियो लाइक जो मैंने बताया था वाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आप सिंपली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे बाय करते हो, सेल करते हो, मतलब रेसिस्टेंस टूटता है तो बाय कर लेते हो, सपोर्ट टूटता है तो सेल कर देते हो, सो यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। आई मेड अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट, आप वो जाके देख सकते हो। अच्छी वीडियो भी वो चल रही है, अराउंड 500-600 व्यूज़ उस पर है। सो दिस वॉज द थिंग and thank you so much for watching this video. So stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.